Hello everyone, welcome to Maluka IAS. Today our topic for discussion is based upon the concept of Sanskritization. So we are basically doing the unit of Indian anthropology and उसमें हम अपना unit 3.2 and 3.3 के questions अभी कर रहे हैं. So today we are basically going to define the Sanskritization. जो बेसिक जो थॉट प्रोसेस होता है दैट कि आपको इंट्रो में क्या जो है डिफाइन करना है. आपका जो इंट्रो होगा दैट इज बेसिकली लाइंग टुवर्ड द टर्म ऑफ संस्कृताइजेशन. हमारा जो इंट्रो होगा वो इसी टर्म के आसपास घूमेगा. बेसिक रहेगा दैट हम इसके मीनिंग को डिफाइन करें कि संस्कृताइजेशन बेसिकली होता क्या है. संस्कृताइजेशन ये जो टर्म है ये कॉइन करी थी M.N. श्रीनिवास, जो एक इंडोलॉजिस्ट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं. उन्होंने इस टर्म को ऐसे डिफाइन किया था व्हेन द लोअर कास्ट ग्रुप, सो इट इज बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम. So he said when the lower caste group, if they are imitating the practices, the ritual, the customs of the higher caste, then this imitation or this emulation is called as the Sanskritization. So it is nothing but कि जब lower caste के person upper caste के person की कुछ activities, उनकी कुछ you can say their food habit, their marriage, their rituals, उनको अगर वो इमिटेट करते हैं, अडोप्ट करने की कोशिश करते हैं, तब उस टर्म को बोला जाता है संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन ये जो टर्म है ये बहुत बाद में आई थी. उससे पहले जो टर्म आई थी दैट इज कॉल्ड एज द ब्राह्मणाइजेशन. व्हाई? बिकॉज अर्लियर दे वर सेइंग दैट देयर इज ओनली वन हायर कास्ट विच इज द ब्राह्मण. And on the basis of this Brahmanism, they are saying that other जो वर्णास है, that is the Kshatriya, the Vaishya and the Shudra, they are trying to adopt the activities of the Brahman. So that's why earlier Brahmanism term use किया जाता था. But M.N. Srinivas, he had used the term Sanskritization and he mentioned that not only the Brahmans activities are being imitated, but the Shudras, they are imitating the activities of the Vaishyas also when they are adopting the businesses, and the Vaishyas, they are adopting the activities of the Kshatriyas as well, and even the Brahman and the Kshatriya, they are adopting some of the habits of Shudras as well. इस तरीके से देयर इज अ काइंड ऑफ की लोअर और हायर. इस तरीके से ये सब चीजें चली आ रही हैं. इस तरीके से आप अपना इंट्रो को मेंशन कर दोगे. देन आपको आना है कहाँ? देन आपको आना है ओवर द बॉडी पार्ट. एंड बॉडी पार्ट में the first and the foremost the thumb rule is that you need to define with the help of some diagram, and diagram की help से ही आप इसको define करोगे. As you can see, model of the Sanskritization, as this question is open, that write something over the concept of Sanskritization. So now it's up to you how you can define with some example, with some diagram, and how you can fetch the marks. तो Sanskritization में define अब आप और क्या कर सकते हो, that we support the Sanskritization and we do not support. So better रहेगा that आप उसको define करो with some models. So model क्या है Sanskritization के? The models they can be defined as the Brahmin model, the Kshatriya model, the Vaishya model and the Shudra model. उसके हेल्प से हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं. जो ब्राह्मण मॉडल है वो क्या बोलता है? ब्राह्मण मॉडल मीन्स व्हाट? देन ऑल द अदर, द शूद्रा, द वैश्य एंड द क्षत्रिय, दे आर ट्राइंग टू इमिटेट द एक्टिविटीज और दी हैबिट ऑफ द ब्राह्मण्स. तो वो क्या करते हैं? वो ब्राह्मण्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको जो है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. अब वो किस किस पॉइंट पर हो सकता है? जो ब्राह्मण्स होते हैं वो कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, लाइक कि अगर आप सुबह उठ रहे हो देन यू नीड टू डू सम पूजा पाठ, एंड with that puja part you are starting your day. So those activities being imitated by the Shudra, the Vaishya and the Kshatriya. The Kshatriya and Vaishya वो तो completely उन rituals को जो है imitate कर रहे हैं. So that adoption or imitation is basically called as the Brahmin model of the Sanskritization. Another one is called as the marriage. It has been found that कि in the upper caste, means in the case of the Brahmin, there are some defined rule for the marriages. Not only the defined rule, but उसके साथ साथ वहाँ पर यह भी मेंशन किया जाता है कि जो उनके विडो रीमैरिज जो है वहाँ अलाउड नहीं होता. उसी को एक मेजर लेते हुए क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा उन्होंने भी विडो रीमैरिज जो है अडोप्ट कर लिया. दैट इज अ काइंड ऑफ मैरिज से रिलेटेड वो किस तरीके से अडोप्शन होता है. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन. It has been found that in the upper caste, the women, they are being provided the secondary position, and on the basis of that secondary position, उनको कुछ freedom नहीं दी जाती. Even during their menstrual cycle, उनको impure consider किया जाता है in case of the Brahmin. And it has been found that in the lower caste,
जो वुमेन है उनको कंपैरेटिवली फ्रीडम मिली हुई होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हेन दोज वैश्या, शूद्रा एंड क्षत्रिया मीन्स द लोअर कास्ट, इफ दे आर अडोप्टिंग those kind of practices being adopted by the Brahmin, and जब वो women को secondary position दे रहे हैं, so then it is called as there is a kind of harsh treatment being provided to the women. and वो feel हुआ किस केस में कि जब उन्होंने ब्राह्मीण को imitate किया. Next one is called as the food habits. So the food habits, we know the thing that Brahmin they were known by the thing that कि वो vegetarian खाते हैं. And vegetarian food is considered as the sattva food, the sattvic food. So when these other lower caste, if they are adopting those food habits, so that is called as the Brahmin model of Sanskritization. Next come forward to the Kshatriya model. So in the Kshatriya model we had found that emulate in the locality. So in case of the Kshatriya it has been found that Kshatriya बहुत different name और बहुत different terms के साथ जाने जाते थे जो कि उनसे associated होती थी, जो उनके aura, उनके pride को show करती थी. So जो शूद्रा एंड वेश्यास है, द लोअर कास्ट के पर्सन है, वो उन्हें इमिटेट कर रहे हैं, उनके अडोप्ट कर रहे हैं अपनी लोकेलिटी में, उनके सेम नेम को अडोप्ट कर रहे हैं. सो सेम नेम अडोप्ट करना मीन्स कि इट इज कॉल्ड एज द काइंड ऑफ कि यहाँ पर क्षत्रिय मॉडल जो है ऑफ संस्कृताइजेशन अडोप्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑन दी लाइन ऑफ दी क्षत्रियास, दे आर अडोप्टिंग द विडोरी मैरिज. सो वो भी क्या हो जाता है कि लोअर कास्ट का वो एक मॉडल हो जाता है. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द वेश्या. द वेश्या मॉडल जो है, we know the Vaishyas they are engaged in the business. So when the Shudra, the lower caste people, if they are adopting the business and वो business में engage हो रहे हैं, then that is called as the Vaishya model of Sanskritization. Another is called as the Shudra. Earlier in the definition of the Sanskritization, it has been said that when the lower caste, specifically when the lower castes are adopting the practices of the upper caste, then it is called as the Sanskritization. But in the present scenario, it has been found that the Shudras, means the higher caste, they are adopting some practices of the lower caste, like the food habits. It has been known that the Brahmin, they used to eat the vegetarian, and that is called as the sattva food. And now in the present scenario, the Brahmin, the Kshatriya and the Vaishyas, they are adopting the non-vegetarian, the tamasic food, the oily food. So that is being called as कि Shudras की वो habits को adopt कर रहे हो, तो it is a kind of Shudra model of Sanskritization. Next, less defilling occupations को. So if the Vaishyas they are adopting some कि डिग्रेडिंग या डिसरिस्पेक्टफुल बिजनेसेस को अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द शूद्रा मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन. सो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा डायग्राम के फॉर्म में शो कर दोगे. ये डायग्राम को आपके जो आपका आंसर शीट है उसका 40% ऑफ द स्पेस में आना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप पूरा अपना एक्सप्लेनेशन दोगे. सो एक्सप्लेनेशन में आप कंप्लीटली अपने आंसर को अच्छे से डिफाइन करोगे बाय प्रोवाइडिंग द इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट में आप डेफिनेशन को शो कर दोगे. देन आ जाते हैं मॉडल. सो मॉडल में ब्राह्मण मॉडल सेम हेडिंग के साथ रिचुअल, द मैरिज, द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, देन द फूड हैबिट, द ड्रेस हैबिट्स, द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम टू द न्यू बोर्न वन, तो उन सब प्रैक्टिसेस को वो अडॉप्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग बनेगी क्षत्रिय मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन. देन वहाँ आप उनके जो है 2 टाइप्स को डिफाइन कर दोगे. उसके बाद वैश्या मॉडल को डिफाइन करोगे, देन द शूद्रा मॉडल, एंड लास्ट में आपका आ जाता है कंक्लूजन दैट कि संस्कृताइजेशन कोई न्यू फेनोमेना नहीं है, बहुत टाइम पीरियड से चला आ रहा है, बट स्टिल ये प्रिवलेंट है. आज के टाइम पीरियड में व्हेन वी आर बेसिकली सेइंग दैट देयर इज नो कास्टिज्म एंड वी शुड नॉट अडॉप्ट द कास्टिज्म, एंड कास्टिज्म शुड बी लाइक कल्चरल रिलेटिविज्म होना चाहिए, लाइक द कास्ट रिलेटिविज्म होना चाहिए. तो प्रेजेंट सिनेरियो में वी कैन से दैट कि इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको वो लेस इम्पोर्टेंट हुआ जा रहा है. बट अगर हमें मॉडल को डिफाइन करना है देन हमें स्टैटिक चीज़ों के साथ ही स्टिक करना होगा. सो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हो. ये जो आपको मॉडल आंसर दिखाई दे रहा है ये आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है मालूका IAS का, जिसका लिंक जो है वीडियो में होगा, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो. सो आप विजिट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ जो है डेली हमारा ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे.